بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت دیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمین کہن درسن مز ووت اسہ انفاق فی سبیل اللہ متعلق پارن اور پتمین دروسن مز پوڑ اسہ کہ یس انسان اخلاص سان محض اللہ تبارک و تعالیٰ سند رضا خاطر پنن مال اللہ تبارک و تعالیٰ سن وتہ مز خرچ کر تمس کوتاہ بوڑ اجر چھ اللہ تبارک و تعالیٰ نش. اور ستی پوڑ اس یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کمو چیزوں سی ضائع گژھان. تات مز پوڑ اسہ کہ ریاکاری یا لکن ایزا واتناون یا پتہ تمن صدقہ خیرات دتھ مختلف قسمک تان دن، یہ سبھی چیزیں صدقے کو بالکل برباد کر دیتی ہیں. ام پتہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم مثالوں ذریعہ امن چیزن ہز وضاحت کہ اخلاص سان انفاق کرن تات کیا بجر تو تھزر چھ اور ریاکاری یا عزا یا تکلیف واتناون ام سۭتۍ کِتھ کٲٹھۍ چھِ صدقہ تو خیرات برباد گژھان. آز یۄس مےٚ آیت تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تلاوت کٔر اتھ منٛز چھِ بیٛاکھ قید یا بیٛاکھ شرط آمٕژ تھاونہٕ انفاق فی سبیل اللہ خٲطرٕ. اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ ارشاد فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والیو، یعنی خطاب چھِ ایمان والین. یا ایہا الذین آمنو انفقو خرچ کرو من طیبات ما کسبتم پاکیزہ چیزیں جو کچھ آپ کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین میں سے اگایا ہے. یعنی دون قسم کن ہند خرچ کرنے آمز یت آئے مبارکہس مز اہل ایمان تلقین کرنے. گۄڈنیُک یہ کینٛژھا تُہۍ خرچاون چھُو تمہِ منٛز کٔرِو پاکیزہ تہٕ طیب چیز یہِ زن انفاق. اور دوٚیِم یہ کینٛژھا تۄہہِ زمین مز نیران چھِ، یہ کینٛژھا وۄبداونہٕ یِوان چھِ تمہِ منٛز تہِ کٔرِو اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرچ. ولا تیمموا الخبیث اور مت تھٲیِو بیوٚن کٔڑِتھ خبیث چیز منہ تنفقون جو کچھ آپ خرچ کرتے ہو. یعنی خرچس مز ما ٲسِو خبیث چیز اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرچ کران کینٛہہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہن چھِ ییٚتٮ۪ن دۄن قٕسمہٕ کٮ۪ن خرچ کرنٕچ کٔرمٕژ تلقیٖن. گۄڈنیُک کہ تۄہہِ کٔرِو سا حلال تہٕ پاکیزہ چیزیں طیبات یُس زن چھِ طیب چھِ دۄن چیٖزن خٲطرٕ یِوان استعمال کرنہٕ. اکھ گوٚو طیب یعنی پاک، پاک سے مراد ہے حلال چیز، یعنی اللہ کے راستے میں حلال چیز کو خرچ کیا جائے. تکیازِ حدیث میں آمد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ خود بھی پاک ہے اور وہ صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود پاکیزہ ہے، اس لیے یس وتہِ منٛز تٔمۍ سٕنٛز مال یہ خرچ کرنے وہ صرف وہ مال خرچ کرتا ہے جو پاکیزہ ہو یعنی حلال ہو. اور دویم آیت ون من طیبات، اس سے دو معنی علماء نے لیے ہیں. ایک تو حلال چیز، دوسرا یہ گژھِ نہٕ کانٛہہ گھٹیا کوالٹی ہُنٛد چیز آسن کینٛہہ بلکہ یہ گژھِ بہتر کوالٹی ہُنٛد چیز آسن. اب اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس گھرس منٛز آسہِ پھٹے پرانے کپڑے ہیں جو کسی استعمال میں نہیں آتے ہیں، اب یہی وہ غریب کو دے لیتا ہے، بہرحال یہ چھُنہٕ اصلی سپرٹ انفاقُک کینٛہہ. یہ تو اس نے خرچ کیا مگر بنیادی طور پر چھن انفاقُک اعلیٰ درجہ یہ کینٛہہ.
अवे अल्लाह ताला फरमावन कि अनफिकू खर्च करो मिन तय्यबात, मगर किन चीजों में से? तय्यबात में से। तय्यबात माने हलाल, पहली शर्त इसमें कि ये पाक होना चाहिए, हलाल कमाई होनी चाहिए। दूसरा, ये गैस आसन असल क्वालिटी हुन, ये गैस न खराब चीज आसन के। अवे अकिस जगह कुरान पाकस मज आमद वन लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, आप नेकी के आला दर्जे को हरगिज नहीं पा सकते हैं जब तक कि आप अल्लाह के रास्ते में उन चीजों को खर्च न करो जो आपको महबूब हों। यानी खर्च गैस करना अल्लाह ताला से वातमज तुम चीज जिनको खर्च करने से आपके दिल पर थोड़ा सा शात यम जन टठ चीज आसन। इसलिए हम देखते हैं कुर्बानी के मौके पर भी हमें तलकीन की गई है कि जानवर ये गैस फरबे जानवर आसन, ये गैस खुश शकील जानवर आसन, और इसकी हिफाजत शरीयत में उम्र की कैद भी लगाई गई है। ये इन वजूह की वजह से कि जो माल आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे ये गैस आसन तय्यब, ये गैस आसन पाकीज़ा थी, और ये अच्छी क्वालिटी का भी होना चाहिए। अवश्य अगर आपके घर में कोई फकीर है, वह गरस मज वो ओ वह कैसा गए उगता गए हम 2-3 दिन दाल खाकर, अब ये दाल हम किसी गरीब को पकड़ाएंगे, बहरहाल ये इन्फाक क्या। आपके जूते अब फट गए हैं, यम बिल्कुल खस्त गमित वह लागन लायक थे क्या, अब आप ये चीज देते हैं किसी गरीब को या किसी फकीर को, और आप समझते हैं कि हमने अल्लाह के रास्ते में इन्फाक किया। बहरहाल ये इन्फाक का आला दर्जा, ये इन्फाक का रियल स्पिरिट नहीं है। अवतन मन कि अनफिकू खर्च करो मिन तय्यबात, जो पाकीज़ा हो, हलाल हो और अच्छी क्वालिटी का भी हो। अलबत्ता इस तय्यबात से दो चीजें इस्तिस्ना है, यानी ज मौवाक़े या ज सूरत आत्मज इस्तिस्ना कि जब हम आला से यानी खराब क्वालिटी का चीज भी दे सकते हैं। वो क्या है? एक ये कि एक इंसान के पास तय्यब चीज हो ही नहीं, सह यूता गरीब कि तमिस आला क्वालिटी हूं चीज आसन, उसके पास खुद ऐसी ही चीजें हैं जो वो इस्तेमाल करता है। अब अगर ऐसी ही चीजों का वो इन्फाक करता है तो इसमें कोई गुनाह, बल्कि ये इन्फाक इस पर सवाब भी होगा। मगर दूसरा, युस जन कह शख्स उसके पास 4-5 कपड़े के सेट हैं या कपड़े के सूट हैं, आत्म से आख प्रोन, अब ये खुद ये लगाना नहीं चाहता है, मगर अब ये सोचता है कि अगर मैं जाय कर ये को बना, अब ये किसी गरीब को देता है इस नियत से कि चलो ये जाया नहीं होगा, इसमें भी इन्फाक की गुंजाइश। मगर रियल स्पिरिट इज एन इन्फाक, असल इन्फाक जो है वो है वही कि हम तय्यब चीजें, एक तो हलाल चीजें और दूसरा अच्छी क्वालिटी की चीजें अल्लाह के रास्ते में दें। अच्छा, दयम आयतन वन दयम इशारीजन कि मिन तय्यबात मा कसब तुम, किस में से आपको अच्छा माल देना है, हलाल माल देना है। मा कसब तुम, जो कुछ आप कमाते हो। कमाई हिंच जुई जरिए, यानी कमाई हासिल करने के सिर्फ 2-3 जरिए हैं। एक है ज़रात, ज़रात का जिक्र भी इस आयत में है। दयम नौकरी, यानी अगर किसी के पास नौकरी हो। त्रेयम अगर वो तिजारत करता हो, और चूरिम अगर उसके पास कोई सनत हो, यानी इंडस्ट्री या फैक्ट्री कहाँ। यही 4 जरिए हैं इकोनॉमी हासिल करने के। आत्मजीजन मिम्मा कसब मा कसब तुम, इसमें पहले 3 आते हैं। कुछ यानी फैक्ट्री जरिए अगर इस आमदनी, अगर इस सनत के जरिए कोई आमदनी है, या तिजारत के जरिए कोई आमदनी है, या नौकरी के जरिए आमदनी है, तो उसके बारे में कहा जाता है जो कुछ आप कमाते हो उसमें से पाकीज़ा और उसमें से अच्छी क्वालिटी की चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अच्छा, वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और त्रेयम आवन जो आमदनी का एक और जरिया है कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जमीन से निकालता है, यानी काश्तकारी के जरिए जो आप हासिल करते हो, उसमें से भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अब इससे मुराद क्या है? यानी उशुर, यानी यम सात ज़रात आज तैयार गसन, तो इस ज़रात में से आप क्या निकालो? उशुर। पहला जो था उसमें दोनों चीजें हैं, फर्ज ज़कात और उसमें नफली सदकात भी आते हैं। मगर मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, इसमें से मुराद क्या है? उशुर। उशुर उशुर असल निकला है अशरा से, अशरा माने 10वां हिस्सा, यानी जो कुछ आप ज़रात निकालते हैं उसमें से आपको अल्लाह के रास्ते में 10वां हिस्सा खर्च करना, और ये आप पर फर्ज है। हाँ, अगर वही ऐसे यजन सा जमीन जिसको सींचा जाता है या जिसको पानी भरना पड़ता है, उस पर तो फिर नस्फ उशुर वो फर्ज हो जाता है। यतन अल्लाह तबारक व तआला यमन दशवनी आमदनियों मज अल्लाह ताला सं वत मज खर्च करने तरगीब आमद दिन। मगर कौन सा माल? तय्यबात, यानी एक तो पाकीज़ा माल हो, दूसरा अच्छी क्वालिटी का माल हो। इसीलिए उशुर उशुर में भी ये हमें सिखाया गया है, और फुकहा लिखमुत जब उशुर
अदा किया जाएगा। असल उशरुक स्प्रिट यह जिनस दिन, हालांकि इसमें नकद देने की भी गुंजाइश है, मगर रियल स्प्रिट उशरुक कुस यह असली जिनस। अब जिनस अत मज उलमा लिखुत कि यह गो लो ग्रेड ऊंट, लो ग्रेड गना या लो ग्रेड नेरान कह चीज, यह गि सारे लोवेस्ट ग्रेड आसन, बल्कि यह मुतवसत दर्जे का फल होना चाहिए। यानी यह गि साफ लो आसन कह, हाँ बेहतर गयो हाई क्वालिटी। अगर न हाई क्वालिटी, उलमा ने इसमें मुतवसत दर्जे की क्वालिटी को भी अल्लाह के रास्ते में देने का उसे कहा कि ये गो तय्यब, यानी ये भी पाकीज़ा है। तो इन दोनों मदों में खर्च करने का हमें कहा गया। वला तयम्ममुल खबीस, और अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि अम्यो अल्लाह ताला से वत मज खर्च करने खतर तुम यह लो ग्रेड या खबीस हिस्से अमिक सो ब्योन थावन कड़ित, सह पे अल्लाह ताला से वत मज ऐसा मत करो। मिनहु तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिज़, यानी ऐसा खबीस हिस्सा इस ज़रात में से या अपनी कमाई में से अल्लाह के रास्ते के लिए मत अलग करके रखो। वलस्तुम बिआखिज़, ऐसा खबीस कि अगर कोई आपको वो माल पकड़ाए आप भी उसको लेने के लिए कबूल, यानी वन युस माल तुम पानस कबूल करू, यह कित पे करू तुम अल्लाह ताला सन्ज वत मज खर्च। ठीक है, हदीस मज आमुत कि दूसरे के लिए वही पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। यतन वन वला तयम्ममुल खबीस मिनहु, इस अपनी कमाई में से या इस ज़रात में से आप खबीस हिस्सा या लो ग्रेड हिस्सा ये अल्लाह के रास्ते के में खर्च करने के लिए अलग करके मत रखो। वलस्तुम बिआखिज़, ऐसा खबीस हिस्सा कि अगर कोई आपको ये पकड़ाए आप भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। इल्ला अन तुगमिज़ू फी, इल्ला ये कि आप आंखें बंद करके उसको पकड़ो, यानी यूत लो ग्रेड चीज ते अल्लाह ताला से वत मज खर्च करन के। और हदीस में आमुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये ज़कात का माल आता था, यम खजूरें आस्तत युवन, बहरहाल वहां पर एक दो किस्म की खजूरें आती थी। अकिस वन मे याद तुम नाव कि अकिस नाव में उमरूक, अकिस हदीस या अकिस खजूर किस किस्मस रसूलुल्लाह ने उन खजूरों को ज़कात के माल में पकड़ने से इनकार किया है। ठीक है, इस्तेमाल मान सारे खोत लो ग्रेड और सारे खोत खराब क्वालिटी हिंद खजूर यम रटने रसूलुल्लाह ज़कातस खतर कहें। और इस आयत का एक खास शान नज़ूल भी है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमान कि ये आयत हम अंसार के बारे में नाजिल हुई है। यह आयत हस गमज कमन मुतलिक नाजिल, ऐसे अंसार मुतलिक हम क्या करते थे जब हमारे खजूर पकते थे, यम सातन हम तैयार गसन तो हम खजूर के खोशे लाते थे और उनको लटका देते थे मस्जिद नबवी में। ऐसे त्रावन अयजान कथ मज मस्जिद नबवी मज खोशों की शक्ल में, पूर्व गुच्छों की शक्ल में, और वहां असहाबी सुफ़ा पड़े रहते थे। तुम्हारे खान चन के इंतजाम आसन किए, जब उनमें से किसी को भूख लगती तो वो अपने आसे से उनको इस तरह से झाड़ते थे ताकि खजूर पेवन बस तुम खजूरन पे तुम गुजर अवकात गसन। मगर दपान अस अक्सर लोग क्या कर हम लाते थे ऐसे खजूर जो फटे हुए खजूर यम जोड़ा खराब गमित खजूर, तिकाज यह कत वत मज दिन, ये तो अल्लाह के रास्ते में देना था। तो इसी पर यह आयत नाजिल हुई वला तयम्ममुल खबीसा मिनहु तुनफिकून, कि जो माल आपको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हो इसके लिए आप कोई लो ग्रेड चीज या कोई खबीस चीज अलग करके मत रखो, बल्कि अल्लाह ताला के लिए कौन सा माल होना चाहिए, तय्यब माल और पाकीज़ा माल। और दयम करके याद थाउन, इस्लाम ने इन्फाक पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। इस्लाम इन्फाकस पर वारिया ज्यादा जोर दितमुत। एक तो हम पर ज़कात आयद हुई है, फर्ज इन्फाक, इसी तरह से हम पर ये क्या उशर, ये भी क्या है फर्ज, ये फर्ज याद उशर और ये ज़कात, ये दोनों हम पर फर्ज हैं। ये साहिबी निसाब आए, और साहिबी निसाब जो होगा अमिक यम मसाइल इंशाअल्लाह मुस्तान ज़कात के मसाइल हम रमजान में पढ़ेंगे। मगर वजन थो याद मुसलमानन पे दोन किस्मन हिंद ये क्या वन इन्फाक वो फर्ज हैं, एक ज़कात दूसरा उशर, ये देना ही देना है जिस पर ये आयद होते हैं, ये साहिबी निसाब आयस। अच्छा, इसी तरह जो चौपाए हैं, चौपाए उन पर भी ज़कात आती है, यानी जाबजाद कौशे ऊंट, उन पर क्या निसाब है, बहरहाल वो हम आगे पढ़ेंगे। मगर यमिस यूता माल तमिस तम हिसाब ज़कात खसन और ये देना लाजमी और फर्ज है। मगर अथ पे कोर अल्लाह तबारक व तआला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर अथ पे बस कह, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो पन्निस अकिस हदीस में फरमो वफी अम्वालिहिम हक़्क़ु सिवा ज़का, यानी आपके मालों पर ज़कात के सिवा भी हक है। किनका हक है, बहरहाल आपके रिश्तेदारों का, आपके अकरबा का। इसी तरह से अगर कोई क्या वन
कुछ साथ मजबूर कर्जस मज गोमुत तो उनके हुकूक अदा करना वो तो इसके अलावा है, तुम मगर नफली सदकात, मगर उनकी भी तरगीब हदीस में बहुत ज्यादा आई है। बहरहाल ये मकसद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला हमसे इन्फाक क्यों करवाना चाहता है? ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या ये ज़कात कोई टैक्स है या ये उशूर ईशा क्या टैक्स? ना, असल में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्फाक का जो ये सिलसिला या इन्फाक का जो निज़ाम किया है, इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। उमो हिकमतों में ज़ हिकमत वानी एक हिकमत ये है कि इससे जो युजन सोसाइटी में गरीब या जन मिस्कीन आसन लाचार आसन उनकी दस्तगीरी होगी, तिकाज ये मुसलमानों पर मुसलमान का हक। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का क्या है? भाई है। और इथे पठन हमसाय सिंद हुकूक आमुत बयान करन, मल सिंद हुकूक आमुत बयान करन, बय सिंद हुकूक आमुत बयान करन, तो इस इन्फाक की वजह से ये तमाम हुकूक आसानी के साथ अदा हो जाते हैं। ये इस्लामन बनोमुत ज़कातुक तो भी उशरुक तो सदकातन हुंद निज़ाम, इसलिए ताकि ये माशरस में गरीब आसन, माशरस में लाचार आसन, उनके हुकूक भी अदा हो सके और वो भी दुनिया में और अपनी सोसाइटी में इज्जत की जिंदगी बसर कर सके। दय्यम युजन अहम मकसद इन्फाक वो है, वो इन्फाक करने वाले को उसका फायदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि ज़कात अगर माल में मिली रहे तो वो उस माल को हलाक करती है। तो अगर हम अपने माल को बचाना चाहते हैं, इसके लिए भी हमें क्या निकालनी होगी? ज़कात। गोई के बहुत फायदा इस मालदार को। दय्यम कथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युस जन ये माल या हुब्बुद दुनिया रअसुकुल्ल खतीआ, जो दुनिया की मोहब्बत है, ये तमाम जो बुराइयां हैं उनकी क्या है? ये जड़। तो इस दुनिया की मोहब्बत को निकालने के लिए और इस दुनिया की मोहब्बत को लात मारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसका इंतजाम रखा है? इन्फाकुक निजाम। और याद रखिए, ये आप तजुर्बा भी कीजिए कि आ गई जिक्र अज़कार, इस्तिग़फ़ार करना, तहलील पढ़ना, तकबीर करना, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, इनसे भी दिल की पाकी और सफाई होती है। और ये बाज़ाब्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमाल इसीलिए बताए हैं कि उम्र से क्या गसन दिल की पाकीज़गी। मगर सबसे ज्यादा जो दिल की पाकीज़गी और रूह की पाकीज़गी होती है वो माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से होती है। अवै ज़कातस पे नावी ज़क्की मुझ द्रामुत मुज़क्का करन, क्या गो? पाको साफ करन। तो इस माल से एक तो इस ज़कात निकालने से एक तो हमारा माल पाक होता है और दूसरा हमारा दिल, दुनिया की मैल इससे दूर हो जाती है और हमारा दिल ये क्या हो जाता है? पाक। और ब्याक युस इंसान अल्लाह ताला से वत मज अल्लाह ताला से मोहब्बत खतर पनुन माल खर्च करे, वो ये इस बात का ऐलान करता है और ये सबूत देता है कि माल छुन में ज्यादा टोट क्या, बल्कि मुझे ज्यादा करीब और मुझे ज्यादा पसंदीदा और मोन युजन ज्यादा चाहिए तो महबूब सुकुश वो अल्लाह का दीन। इसीलिए मैं इस चहीते माल को अल्लाह के रास्ते में क्या करता हूं? खर्च करता हूं। इसलिए अवया मन ये माल की मोहब्बत, दुनिया की हिर्स, ये कब निकलेगी दिल से? जब वो माल हम खर्च करेंगे जो हमें पसंद होगा। वरना अगर हम ऐसा माल देंगे युजन लो ग्रेड माल आस, युजन ब्रोठी जरूरत ही ओस नुकुन छेमुज चपल छोनमुज सूटा का दियुत, बताओ ये तो हमें छोड़ना ही त्रथ ही सुन। अब इससे दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलेगी नहीं। मगर अगर बह कर तुथ सूट या अगर मैं अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करूं, ऐसा चूट पीट दिम चीट चूट पीट पगह मार्केटस में 1200-1300 लाई, इससे मेरे दिल पर थोड़ा शाक गुजरेगा। मगर इसी से दिल की युजन सफाई होती है और अमी चीज से दुनिया मोहब्बत नेरन। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए खबीस माल या लो ग्रेड माल ये मत ब्योन कर, बल्कि अल्लाह के रास्ते में तय्यब पाकीज़ा और अच्छी क्वालिटी का माल अल्लाह के रास्ते में बहरहाल खर्च किया जाए। अल्लाह ताला फरमान अच्छा इल्ला अन तुगमिज़ू फी, कैसा माल होना चाहिए? ये गछ त्युथ माल आसन कि जो कोई आपको अगर पकड़ाएगा आपको भी इससे गिन आएगी। गो ये गछ त्युथ माल आसन कि जैसा आप खुद लेने के लिए तैयार हैं वैसा ही माल दूसरे को भी आप दें। अल्लाह ताला फरमान वालमू, जान लो अन्नल्लाह गनीयुन हमीद, कि अल्लाह गनी भी है और हमीद भी है। यानी मैंने पहले भी कहा था, जो भी माल हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं ये असल में हम साइल को या इस फकीर को नहीं देते हैं। ये फकीर या साइल अल्लाह की तरफ से वकील बनकर हमारे पास आता है। असल में ये माल हम किसके बैंक में असल में जमा करें? अल्लाह के बैंक में जमा करते हैं। अच्छे बेहतरीन कथ वन दोपन जो माल हम बैंक में रखते हैं या मुख्तलिफ पॉलिसियन में फिक्स करान माल तथ प्रेथ कुछ लिखित जम्मू एंड कश्मीर बैंक अत क्या लिमिटेड लिमिटेड
या इधर स्टेट बैंक लिमिटेड, मगर जो अल्लाह का बैंक है जब हम वहां पर पैसा जमा करेंगे इट इज द बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड, यानी ये अनलिमिटेड। अगर तो वुशन ये असल में ये बात कही थी शुजाउद्दीन शेख जन अमीर तंजीम इस्लामी है इस वक्त पाकिस्तान में, उनकी ये बात है कि जो माल आप खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में इट इज एक्चुअली डिपॉजिटेड इन अल्लाह बैंक अनलिमिटेड, तच अनलिमिटेड ये जन सूद अनलिमिटेड इंटरेस्ट। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वालमू, खूब जान लो आप ये माल किसको दे रहे हैं, अन्नल्लाह गनी, आप उस अल्लाह को देते हैं जो गनी है बेनियाज, उसको आपके इन सदकों की या आपके इन टकों की जरूरत असल में नहीं है। और दयम का तर फिक्र ये कि जिसको हम ये माल दे रहे हैं वो गनी है, और गनी को कैसा माल तमिस कुछ माल खच चिकार, अगर वो 2 पैसे का या कटे ये क्या वन बिल्कुल लो ग्रेड माल तमिस खच न चिकार, क्योंकि वो तो गनी है। अब अल्लाह ये बंदे का कमाल है, बंदे का काम है कि वो अच्छे से अच्छा माल अल्लाह के सामने प्रेजेंट करे। तवया वन वालमू अन्नल्लाह गनी, अल्लाह जिस अल्लाह के लिए आप ये माल दे रहे हो, जिस अल्लाह को अपना ये माल आप इस फकीर को वकील बनाकर दे रहे हो वो गनी है, वो देखता है और उसको आपके इस माल की हाजत और कौन सा माल देना चाहिए आपको। इसलिए गनी के पास आप कौन सा माल अच्छे दुनिया बनोमुत, आपने खुद तजुर्बा किया होगा। ये माहशामस मज अक्सर ज्यादा पह इन्फाक कर, ये आम युवन कुस सफीर कुन दारुल हम उसको कितना पकड़ाते हैं, ज्यादा को ज्यादा 10 रुपये 50 रुपये 2 रुपये, मगर ये मुफ्ती अयूब सब युवन या मुफ्ती शरीफ सब युवन या ब्याह का मुफ्ती युवन हम उस वक्त कितना माल देते हैं उसको, तम साथ 5 रसीद चाटन साथ क्यों, क्योंकि स्टेटस वुशित वुशन होता आता कुस्तामत ब्याह सफीर तमिस तीजा जान पहचान, मगर इसको हम जानते हैं, इसका स्टेटस हमें मालूम है, वो मुफ्ती साहब आओ तो हम ज्यादा रसीद काटने के 5,000 चाटन। तो अल्लाह जो सबसे गनी है और जिसका स्टेटस और मर्तबा सबसे ऊंचा है तमिस ब्रोट के कुछ रसीद गई चाटन, वो था आला क्वालिटी का रसीद और आला क्वालिटी का माल। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वालमू अन्नल्लाह गनी, जान लो जिस अल्लाह के सामने आप ये माल देते हो यमिस खुदा इस ब्रोट के तो ये माल दियो वो गनी है हमीर, और वो क्या है हमीर, तारीफ किया गया, यानी आपके इस माल से उसकी कोई तारीफ और कोई बड़ाई नहीं होगी, बल्कि वो तो खुद से हमीर है। इसलिए उसके हमद के लिए आपको ये पैसे खर्च करने की असल में जरूरत, उस पैसे खर्च करने से उसकी कोई तारीफ नहीं हो वन तारीफ खुदाई से वत मज कोर मैं लक्ष रुपये खर्च, ये कोई बड़ा काम या कोई बड़ी बात, वो तो तारीफों वाला है, उससे भी ज्यादा माल खर्च करने की उसकी असल में रास्ते में गुंजाइश और उसका वो हकदार है। रब्बुल आलमीन मांगो दुआ कि उस दिन ज्यादा खुद ज्यादा अल्लाह ताला से वत मज इंफाक कर तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।